Okay, so hello everyone. So in this video, we will be discussing about functions. Okay, so we will be seeing what are built-in functions. As we have already seen this in the previous videos, we will write our own functions and we will see the global and local scopes. What do I mean by local? Okay, scopes. So let us begin. Okay, so first let us see the definition, then we will go on to the practical application. Okay, a function is a block of organized reusable code. So this reusable word is important. Okay, so whatever we will learn will be just based on this fact that it is reusable. Okay, that is used to perform a single related action. Functions provide better modularity to application and high degree of code reusing. So you can see the word reusing is occurring again and again. Okay, so you might have guessed that something related to reusing must be there in the function. Okay, so now let us see the syntax. So what is the meaning of syntax? So syntax is basically basic structure that is used while using something. Okay, so let's say we have learned about if. Okay, so what is syntax is that we used if, then we gave the condition. Okay, then we gave a colon. Okay, then we give a statement, right? So this is known as a syntax. Okay, this is the basic structure which defines an if statement. Okay, so this is known as syntax. So similarly, for defining a function, the basic syntax is that we use the def keyword. Okay, this is important. We use the def keyword, then we give the function name. Okay, just keep in mind that the function name should not be like a keyword. So what do I mean by keyword is that, like, for till now you might have seen several words which, like, for example, input. Okay, so if you type input, I'll show you here. Okay, if you type input, automatically its color changes, right? However, if you type apple, I'm sorry, the spelling was incorrect, apple, the color did not change. Okay, similarly, if I type min, the color also again changes. I type int, the color changes. So these words for which the color changes are known as keywords. Okay, so the function name should not be a keyword. Okay, it can be anything, but it should not be a keyword. And then we have parameters, so we will understand what is a parameter. So for now, just remember a def keyword is important. The function name, it can be anything other than keyword. Okay, then we give quotes, and then we have, like, as we are giving a colon, we have to give a proper indentation. It should not, let me change the color so that you understand it better. So after giving the colon, it should not start from here, right? We have to give some space. Okay, so all three are in the same line. So then we have a function comment string. So what does this mean is that suppose you have written something. Okay, so I'll explain it to you in the code. Okay, so now this is my IDLE and now this is my code editor. Okay, so let us say that you have got a program. Okay, so first let us understand it here. Okay, so let us say you have a variable named a is equal to 2. Okay, and b is equal to 5, and suppose somebody has told you to write a program to add two numbers and store it in a variable c. So I will do a plus b. Okay, and then I'll simply display c7. So just अब ऐसा सोचो तुम्हें ये सेम काम लेट्स से 50 टाइम्स करना पड़ गया. ओके, 50 टाइम्स, तो तुम्हें 50 टाइम्स ये c इज इक्वल टू ए प्लस बी करना होगा, राइट? ये काम तुम्हें बार बार करना पड़ेगा 50 टाइम्स. तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कहीं पे लेट से यहाँ पे समझते हैं. ओके, सो आई विल टेक अ फ्रेश पेज. ओके, सो दिस फ्रेश पेज. सो लेट से हमें ऐड करना था c इज इक्वल टू a प्लस b. ओके, सो लेट से हमारे पास 50 नंबर्स हैं. ओके, 50 नंबर्स हैं, तो तुम्हें एक चीज़ 50 टाइम्स करना पड़ जाएगा. इंस्टेड हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स मान लो. ठीक है, बॉक्स, एक डब्बा मान लो, इसमें हमने c इज इक्वल टू a प्लस b स्टोर कर दिया. ओके, और मैंने यहाँ पे लेट्स से ऐसा कुछ ऐसा मान लो. ठीक है, ये ब्लैंक्स है, ये इसका मान लो a है, ये b है और ये c. ओके, मैंने सिंपल ये बॉक्स है. ओके, ये बॉक्स है और ये बेसिकली ड्रॉर्स मान लो. ओके, ड्रॉर्स मान लो, ये ड्रॉर्स है. ओके, सो अब क्या होगा, लेट्स से तुम्हें 50 टाइम्स करना है. तुम्हें पहले बार में a का वैल्यू 5 मिला, b का वैल्यू लेट्स से मिला 7. ओके, तो अगर तुम्हें 50 टाइम्स से काम करना हो तो तुम्हें बार बार करना पड़ता. इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो, सिंपली ये 5 को इस ड्रॉर में डाल दो, इस 7 को इस ड्रॉर में डाल दो. ओके,
ये सिंपली बॉक्स के अंदर c इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। यहाँ से फिर तुम्हें इस c को यहाँ से निकालो और यहाँ पे आउटपुट कर दो। ओके, सिमिलरली अगर तुम्हें नया सेट मिला यहाँ पे, लेट से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू लेट से 30, ठीक है। अब फिर से तुम सेम काम करो, इस 10 को उठाओ इसमें डालो, इस b को यहाँ से उठा के इसमें डाल दो। ओके, फिर तो तुम्हें रिजल्ट मिले यहाँ से, उसे यहाँ से आके यहाँ पे प्रिंट कर दो। ओके, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट होंगे। ओके, सो तुमने यहाँ देखा होगा, और ये तुम्हारा एक केस हो गया। और तुम दूसरे केस में क्या कर सकते थे, पहले तुम्हें मिला c इज इक्वल लेट से a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, तुम करोगे c इज इक्वल टू 5 प्लस 2। ओके, यहाँ पे तुम प्रिंट करते c। ओके, फिर नेक्स्ट केस में तुम्हें मिला a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, फिर तुम यहाँ पे करते c इज इक्वल टू a प्लस b, दैट इज 10 प्लस 30, फिर तुम यहाँ पे करते प्रिंट c। ओके, तो तुमने देखा होगा यहाँ पे हमें ये काम बार बार करना पड़ रहा है हर एक स्टेप में। ओके, यहाँ दो बार ये काम करना पड़ गया, 2 बार के लिए। अगर हम 50 टाइम्स करना तो ये काम 50 टाइम्स करना पड़ जाएगा। बट इन दिस केस तुमने देखा होगा ये मैंने एक ही बार लिखा कहीं पे, और ये बार बार जब a का वैल्यू जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना वहाँ से यूज़ कर ले रहा है, राइट। सो दिस इज़ वॉट दिस कोड रीयूजेबिलिटी मीन्स। ओके, सो ऐसे हम लोग फंक्शंस डिफाइन करते हैं और इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो चलो करके देखते हैं, हाउ डू वी डिफाइन फंक्शंस। ओके, सो यहीं पे कर लेते हैं। सो आई विल यूज़ द डेफ कीवर्ड। ओके, आई विल गिव अ फंक्शन नेम according to the syntax. I have to give a function name. So function name would be, let's say, add num. Okay, and now I have to give parameters. So what do I mean by parameters is that यहाँ पे इस ड्रॉर का एग्जांपल ले लो। सो तुम्हें अगर c इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, तुम्हें a और b का वैल्यू चाहिए, राइट। a और b में वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स तुम्हें इस ड्रॉर में कुछ चाहिए, तभी तुम इसे प्रोसेस कर पाओगे। ओके, सो ये a और b जो है इसे हम लोग पैरामीटर्स कहेंगे। ओके, दिस इज नोन एज पैरामीटर्स। I hope it is clear. So we'll give parameters here. Let's say a comma b. Okay, I'll give a colon. I'll press the enter key. So अपने आप कुछ इंडेंटेशन आ जाएगा। So हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं इंडेंटेशन को। अब हम लोग यहाँ पे लेट्स से, अब इसे मैं समझाता हूँ ये फंक्शन कमेंट स्ट्रिंग क्या करता है। ओके, सो मान लो तुमने एक बड़ा सा कोड लिखा। ओके, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेट्स से तुमने यहाँ पे ऐड के लिए लिखा और तुम्हें सेम का मल्टीप्लाई करना है, तो तुम मल्टीप्लाई के लिए अलग फंक्शन लिखोगे। तो सिंपली अगर तुम कोड अपना बाद में देखो तो तुम्हें समझ आए कि तुमने किया क्या एग्जैक्टली, इसके लिए तुम यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली दिस फंक्शन एड्स टू नंबर्स। ओके, तुमने लिख दिया। अब क्या होगा, तुम जब बाद में चेक करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये फंक्शन मेरा नंबर्स को ऐड कर रहा है। ओके, नाउ आई हैव रिटन दिस फंक्शन कमेंट स्ट्रिंग। आई होप इट इज क्लियर। देन आई हैव टू राइट द फंक्शन कोड। फंक्शन कोड मतलब बेसिकली तुम्हारा फंक्शन कर क्या है। सो वी विल डू c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, अब यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ ड्रॉर। सो यहाँ पे तुमने, ओके सो लेट मी चेंज द कलर, आई टेक रेड। सो यहाँ पे तुमने c में वैल्यू स्टोर किया, a और b स्टोर कैलकुलेट करने के बाद। अब तुम्हें c लाइक तुमने कुछ काम किया है तो उसे वापस आउटपुट भी तो करना पड़ेगा, राइट। सो तुम्हें c को वापस भेजना पड़ेगा प्रिंट पे, तो वरना फ़ायदा क्या फंक्शन यूज़ करने का। जब अगर तुम कुछ जो तुम a इज इक्वल टू a प्लस बी करना था, तुमने a प्लस बी किया, अब जो रिजल्ट आया तुम्हें उसे वापस भेजना भी तो पड़ेगा, राइट। सो तुम्हें इस ड्रॉर में से एक आउटपुट करना पड़ रहा है, राइट। दिस इज आउटपुट एंड दिस वॉज द इनपुट। ओके, सो तुम्हें इसे आउटपुट भी करना पड़ रहा है। सो दिस रिटर्न स्टेटमेंट सिंपली इस ड्रॉर का काम कर रहा है, आउटपुट ड्रॉर का काम कर रहा है। ओके, सो तुम्हें आउटपुट करना है। So what I'll do is that return c. Okay, so my function is over now. I'll press enter. ये मेरा फंक्शन बन चुका। अब लेट्स से मुझे करना है, लेट्स से मेरे पास a इज इक्वल टू किसी ने मुझे दिया 2, ओके, और b इज इक्वल टू मुझे किसी ने दिया 5। ओके, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, c इज इक्वल टू मैं ऐड नम कॉल कर दूंगा इस फंक्शन को। ऐसे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें वैल्यू पे स्पेसिफाई करेंगे a कॉमा b। ओके, अब मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं अगर c को चेक करूं, यू कैन सी आई गॉट 7 हियर, पर मैंने कहीं पे यहाँ पे a प्लस बी नहीं किया, मैंने सिंपली इस फंक्शन को कॉल किया। तो ये फंक्शन के अंदर गया, अब ये काम हुआ और मुझे 7 मिल गया। ओके, अब मुझे लेट से मेरे को मिला a इज इक्वल टू 10,
b इज इक्वल टू 20. ओके, सो अगर अब मैं करूँ c इज इक्वल टू एड num. ओके, आई पास a कॉमा b, आई आउटपुट c, आई एम गेटिंग 30. राइट. सो आई गेस समझ आ गया होगा कि फंक्शंस काम कैसे करते हैं. राइट. सो ये है बेसिक यूज़ है फंक्शन का. सो नॉट नेसेसरीली तुम वेरिएबल पास करो, तुम सिंपली इसमें ऐसे भी पास कर सकते हो. ऐड लेट से c इज इक्वल टू ऐड num 20,30. ओके, मैंने ऐसे पास किया. अब मैं अगर c देखूँ तो मुझे 50 मिल रहा है. राइट. तुम ऐसे पास कर सकते हो. आई थिंक नाउ दिस इज़ क्लियर. ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. अब लेट से तुमने एक काम कर लिया, अब हम समझते हैं पहले. ओके, सो यहाँ पे इसमें इसको क्लियर कर देते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस से यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन था डेफ फंक्शन नेम. ओके, यहाँ पे तुम्हारा पैरामीटर्स था. ओके, कोलन, और यहाँ पे तुम्हारा स्टेटमेंट्स था. ओके, फिर यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न था. रिटर्न तुमने सी किया था. ठीक है, और तुमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया था फन नेम पैरामीटर्स. ओके, तुमने ऐसे ऐसे किया था इसको. तो अब काम कैसे करता है, लेट्स चेंज द कलर. सो अब यहाँ पे क्या होता है, तुमने जब फंक्शन कॉल किया, हमने यहाँ पे ऐसे कॉल करा था फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन डिफाइंड था कहीं पे. तो क्या होता है, तुमने जो पैरामीटर्स पास किया वो यहाँ से उठ के यहाँ जाता है. ओके, यहाँ जाता है. राइट. यहाँ पे जाने के बाद फिर ये फंक्शन कॉल होता है, फिर अंदर घुसता है, जो भी स्टेटमेंट उससे एग्जीक्यूट होता है. लेट्स से वहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी था. सो यहाँ पैरामीटर्स गया. लेट्स से पैरामीटर्स हमारे क्या थे, a कॉमा b थे. यहाँ पे भी कुछ था हमारा, यहाँ पे पैरामीटर्स थे a कॉमा b. सो ये यहाँ पे जाता है, यहाँ पे a और b में हमें वैल्यू मिल गया, तो a प्लस बी हुआ, वो c में स्टोर हो गया. फिर क्या हुआ, ये रिटर्न किया. ओके, सो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है. सो यहाँ पे हम कैसे कर रहे थे, यहाँ पे c इज इक्वल टू कुछ लिख रहे थे. ओके, सो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, ये जो वैल्यू यहाँ पे मिला इसे ये उठाता है ऐसे और इसमें स्टोर कर देता है. ओके, आई गेस समझ आ गया होगा बेसिकली कैसे काम करता है फंक्शन. ओके, तो अब आते हैं एक और चीज़ पे. सो पहला चीज़ ये नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे तुमने जो वेरिएबल नेम दिया है वो यहाँ पे सेम हो, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ से यहाँ कॉपी हो रहा है. ओके, यहाँ पे तुम कुछ भी दो उससे उसको मतलब नहीं है. लेट्स से मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ इसे, मैं यहाँ फिर से फंक्शन बना रहा हूँ. ओके, और यहाँ पे मैं इसे num1 num2 भी दे सकता था. ओके, और सिमिल तब यहाँ पे मुझे a कॉमन नहीं देना है, क्योंकि a कॉमन b अब कोई फंक्शन, अब यहाँ पे a और b कुछ है ही नहीं. अगर मैं ऐसे एंटर कर दूँ तो एरर आ जाएगा. अब यहाँ पे मुझे करना होगा num1 प्लस num2. ओके, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ c. अभी भी ये फंक्शन सही है. ओके, इवन इफ अगर अभी भी ऐसे मैं अगर करूँ, लेट्स से num3 इज इक्वल टू ऐड num. ओके, और मैं यहाँ पे लेट्स से ओके, सो मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिया, तो a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ. ओके, और मैं करूँगा num3 इज इक्वल टू ऐड num. ओके, और मैं करूँगा a कॉमा b. So if I check the value of num3, I am getting 5. Okay, so it is not necessary that these two names are same, क्योंकि यहाँ से वेरिएबल का वैल्यूज उठ के यहाँ कॉपी होता है, उसके बाद जो भी अंदर काम होना होगा उसके बाद ये रिटर्न करता है. रिटर्न जो करेगा वो इसमें आ जाएगा. ओके, सो ये बेसिक पॉइंट वाज दैट ये दोनों सेम नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है, सेम हो नॉट नेसेसरी. ओके, अब आते हैं सेकेंड थिंग पे. तो ये आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो अब आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट पे. सो रिटर्न एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हमारा फंक्शन था, कोलन था. ओके, यहाँ स्टेटमेंट 1 था, स्टेटमेंट 2 था, फिर ये रिटर्न था. ओके, और जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे थे तो c इज इक्वल टू समथिंग लिख रहे थे. ओके, यहाँ फंक्शन नेम हो रहा था, यहाँ पे पैरामीटर ऐसा कुछ हो रहा था. ये हमारा फंक्शन कॉल का बात कर रहे हैं. तो रिटर्न से क्या हो रहा है, सिंपली इसमें वैल्यू कॉपी हो रहा है. ओके, अगर मैं रिटर्न नहीं दूँ, ओके, अगर मैं रिटर्न नहीं दूँ तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू जो हम लोग लिख रहे थे फिर उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा. राइट. सो इसको समझते हैं. अगर मैं फिर से सेम चीज़ कॉपी कर देता हूँ, ओके, कंट्रोल C कंट्रोल V, लेकिन अभी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिंपली मैं करूँगा प्रिंट, PRINT प्रिंट C. ओके,
अब क्या होगा, अब मैं जैसे कभी फंक्शन कॉल कर रहा था तो मैं एक वेरिएबल में पहले नंबर स्टोर कर रहा था, राइट, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ये ड्रॉअर वाला, ये ड्रॉअर से वैल्यू उठ के पहले आ रहा था किसी में हम लोग स्टोर कर रहे थे, उसके बाद ही वो प्रिंट हो रहा था, राइट, यहाँ पे, राइट। बट इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये यहाँ पे अब सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ तो मैं इस ड्रॉअर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहा हूँ और इसी के अंदर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, राइट, इसके अंदर ही मैं प्रिंट सी कर दे रहा हूँ। सो आई थिंक समझ आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा था मैं, तो समझते हैं इधर। सो आई हैव डन दिस। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा, अब अगर मैं कहीं फंक्शन कॉल करूँ तो मुझे c इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लाइक हम लोग ऐसे कर रहे थे, लेट्स से c इज इक्वल टू ऐड नम और 10, 20 करते हैं, ओके। सो अभी भी ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अब हम लोग सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं अभी c का वैल्यू चेक करूँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों मुझे कुछ नहीं मिला? क्योंकि अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ से, ओके। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर तुम्हें सी से कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, ओके। लेट्स आई टेक num3 इज इक्वल टू ऐड num 4, 5, राइट। तो मेरे पास 9 तो आउटपुट आ गया, लेकिन अभी num3 में भी 9 स्टोर होना चाहिए। लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ num3। कुछ नहीं मिला, राइट, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिल रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट था। रिटर्न क्या कर रहा था, जो भी ये कैलकुलेट कर रहा था उसका वैल्यू num3 में डाल रहा था। बट इन दिस केस कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ये फंक्शन, ये सिंपली प्रिंट कर रहा है। तो अगर हम लोग अगर रिटर्न नहीं देते हैं तो हमें इसका कुछ काम नहीं है। वी कैन सिंपली डू ऐड num, ओके, और हम लोग यहाँ पे लेट्स से 30, 10 ऐसे दे सकते हैं। हमारे पास 40 आ गया, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। लेकिन अगर मैं रिटर्न दे दूँ तो हमें वेरिएबल का नाम देना ज़रूरी है। लेट्स से आई विल कॉपी इट हियर, कंट्रोल V, एंड आई विल गिव इट रिटर्न स्टेटमेंट हियर। सो आई विल गिव रिटर्न C, फाइन। नाउ इफ अगर मैं ऐसा सिंपली ऐसा करना चाहूँ, ऐड num इज इक्वल टू 20, 10, सो आई एम गेटिंग द आउटपुट। बट इन दिस केस ये रिटर्न अभी ये काम कर रहा है क्योंकि मैं आइडियली यूज़ कर रहा हूँ, बट इन द मेन प्रोग्राम ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि आई विल गिव यू द एग्जांपल। अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँ, ओके, इस कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसे कोड एडिटर में लिख रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है, सो आई विल कॉपी इट हियर, कंट्रोल C, आई विल गो हियर, so I'll simply call the function add num and I'll pass, let's say I'll pass 20, 10, okay। तो मैंने कहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा, राइट, कहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंपली रिटर्न कर रहा है, बट रिटर्न के लिए कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। लेट अस चेक क्या होता है। इफ़ आई रन द मॉड्यूल, यू कैन सी मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये रिटर्न तो कर रहा है बट मैं कहीं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं ऐसा करता यहाँ पे, let's say I'll do num3 is equal to add num, okay, ऐसा करूँ मैं, और नेक्स्ट लाइन में मैं सिंपली कर दूँ print num3, okay। अगर मैं सेव करता हूँ इसे, अब इसे रन करके देखो, यू कैन सी इन दिस केस मुझे आउटपुट मिल रहा है, ओके। सो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम होता है, अगर रिटर्न नहीं देंगे तो क्या होगा, ओके, और फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये बेसिक से ड्रॉअर वाले एग्जांपल से समझ सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट है मतलब उसका ड्रॉअर में एक आउटपुट ड्रॉअर भी है जिससे वो वैल्यू कहीं जाता है। लेकिन अगर हम लोग रिटर्न नहीं देते हैं, अगर अंदर में कुछ प्रिंट करते हैं तो वो ड्रॉअर के अंदर ही वो काम होता है, ओके। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस, राइट। अब एक और चीज़ समझते हैं, ये लिस्ट वाला। लिस्ट और म्यूटेबल डाटा टाइप्स आर पास्ड बाय रेफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। सो अब आइडियली पे आते हैं, ओके। तो आई विल यूज़ अ फंक्शन, ओके। सो लेट्स डिफाइन अनदर फंक्शन। आई विल यूज़ अ फंक्शन, इसको मैं नाम में फन दे रहा हूँ, ओके। इसमें मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ a, ओके, और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, a इज इक्वल टू 20 कर दे रहा हूँ, राइट, ओके। और मैं सिंपली अंदर में ही प्रिंट
ए कर रहा हूँ, फाइन, डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लेट्स से नम इज इक्वल टू, आई एम गिविंग इट अ वैल्यू लेट्स से 10, ओके। और मैं क्या करूँगा, इस फन फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें मैं नम वेरिएबल भेजूँगा, ओके। तो नम इसमें जाएगा तो ये ए में नम का वैल्यू चले जाएगा, तो 10 अब चल जाएगा यहाँ पे अब ए का वैल्यू 10 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू 20 हो गया। तो जब प्रिंट होगा तो आई थिंक आई शुड गेट 20 एज आउटपुट, राइट। मुझे 20 मिला आउटपुट में, फाइन। कैसे 20 मिला समझ आ गया होगा, जबकि नम का वैल्यू 10 था, राइट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। लेकिन अगर मैं नम का वैल्यू चेक करूँ, वो अभी तक 10 है, राइट। यहाँ पे 10 है, करेक्ट, समझ आ गया होगा यहाँ तक। लेकिन अगर लेट्स से आई टेक अ लिस्ट, नेम लिस्ट लूँ, ओके, और इसमें मैं लेट्स से पहला वैल्यू मेरा हेलो है, कॉमा 2, 3, 4, 5, लेट्स आई गिव वर्ल्ड हियर, ओके, कॉमा हाई। ये एक लिस्ट बना दिया मैंने, राइट। सो फर्स्ट लेट मी डिफाइन अनदर फंक्शन। सो इस आई एम डिफाइनिंग अ न्यू फंक्शन नाउ, डेफ फन। इसमें मैं क्या करूँगा, एक लेट्स से li, एक मैं रैंडम सा नेम दे दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें li ऑफ 0 इज इक्वल टू लेट्स से चेंज्ड, ओके, ऐसा कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं पूरे li को प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। सो मैंने फंक्शन बना दिया और मेरे पास नेम लिस्ट पे तैयार है यहाँ पे। लेकिन अब व्हाट इफ़ अभी मैं अगर नेम लिस्ट चेक करूँ, यू कैन सी मेरा नेम लिस्ट ऐसा कुछ है, राइट। सो आई विल नाउ पास दिस नेम लिस्ट टू दिस फंक्शन, ओके। सो आई विल डू फन ऑफ, आई विल पास द वेरिएबल नेम लिस्ट, ओके। सो नाउ यू कैन सी जब मैंने नेम लिस्ट पास किया फंक्शन को, तो यहाँ पे li ऑफ 0 में चेंज्ड आ गया अब, ओके। तो जब यहाँ पे प्रिंट हुआ li, तो li पहले क्या हुआ, नेम लिस्ट का वैल्यू li में गया, ओके। अब li ऑफ 0 चेंज कर दिया मैंने, li ऑफ 0 मतलब हेलो को चेंज किया, तो प्रिंट li किया मैंने, तो ये ऐसा कुछ प्रिंट हुआ, राइट। लेकिन अब अगर मैं नेम लिस्ट चेक करूँ, तो यू कैन सी नेम लिस्ट में भी अब वही हो गया। लेकिन यहाँ पे नेम लिस्ट ऐसा कुछ था, लेकिन अब यहाँ पे नेम लिस्ट में भी चेंज हो चुका है वो, राइट। सो इसे कहते हैं पास्ड बाय रेफरेंस, ओके। तो यहाँ पे यू कैन सी पास्ड बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है। सो जब मैं तुम्हें फंक्शंस पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम लोग फंक्शन में कुछ नंबर देते हैं, तो सिंपली वो वेरिएबल का वैल्यू उसमें कॉपी हो जाता है, ओके, कॉपी हो जाता है वैल्यू, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं पास्ड बाय वैल्यू, राइट। सिंपली वो वैल्यू कॉपी हो गया। बट इन दिस केस, जैसे यहाँ पे तुमने देखा था, हमने नम का वैल्यू 10 लिया था, फिर नम को हम लोग जब किए तो ये प्रिंट किया 20, बट नम का वैल्यू अभी भी 10 है। बट इन दिस केस हमने नेम लिस्ट बनाया, नेम लिस्ट को मैंने पास किया फंक्शन में, उसका मैंने एक वैल्यू चेंज किया, जब उसे प्रिंट किया मैंने तो वो चेंज हुआ, बट ओरिजिनल नेम लिस्ट में भी वो वैल्यू चेंज हो गया, राइट। आई थिंक तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग लेट्स टेक अ फ्रेश पेज, ओके। सो जब हम लोग नेम लेट्स से कोई म्यूटेबल डाटा टाइप भेजते हैं, म्यूटेबल मीन्स जो विच कैन बी चेंज्ड, ओके। सो म्यूटेबल जैसे मैंने बताया था कि हम लोग लिस्ट में कोई, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, सो लिस्ट का हम लोग कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अलग से चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन सेट में ये पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग में ये पॉसिबल नहीं है, ओके। सो क्या होता है कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट एक जगह बन जाता है, राइट। एक कंप्यूटर के मेमोरी में एक लिस्ट बन गया, इसका कुछ एड्रेस होगा, राइट, इसका कुछ एड्रेस होगा। तो इस केस में क्या होता है, जब हम लिस्ट पास करते हैं, तो जैसे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, ओके, फंक्शन एक है, ओके, हमारा फंक्शन है, कोलन होता है, स्टेटमेंट होता है, और यहाँ से हम लोग फंक्शन का कॉल करते हैं। ऐसे ही कुछ होता है, हम लोग यही करते हैं अभी तक, ओके। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, लेट्स से हम लोग जब पहले कुछ नंबर भेज रहे थे, तो सिंपली क्या होता है, यहाँ से इसका वैल्यू जो है यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ओके। सो लेट्स से आई गिव हियर ए, ओके, यहाँ पे मैंने ए लिखा, लेट मी चेंज द कलर। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक ए लिखा और यहाँ पे मेरा वैल्यू है नम, ओके। सो यहाँ पे लेट्स से नम इज इक्वल टू 10 है, ओके। तो एक नम वेरिएबल होगा, कंप्यूटर का मेमोरी में एक नम वेरिएबल होगा। लेकिन जब मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो फंक्शन में एक अलग वेरिएबल है ए,
उसमें अब ये नम का वैल्यू कॉपी हो गया, इसलिए हम लोग ए में जो भी चेंज करते हैं वो नम में नहीं दिखता हमें, राइट। लेकिन लिस्ट के केस में क्या होता है, ओके, लिस्ट के केस में जब हम लोग यहाँ से फंक्शन लेट्स से कि यहाँ पे अब ये एक लिस्ट है, अब लेट्स से इसको चेंज कर देते हैं कलर, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास किया, ओके, और यहाँ पे भी एक लिस्ट है, कोई वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं लिस्ट पास करता हूँ तो जैसे कंप्यूटर में, और एक चीज़, जब कंप्यूटर में हम लोग कोई वेरिएबल स्टोर करते हैं तो उसका कुछ एड्रेस होता है, राइट। आई थिंक जैसे तुम समझ सकते हो ऐसे, जब तुम एक मैट्रिक्स बनाते हो, ओके, जब तुम एक मैट्रिक्स बनाते हो, लेट्स से ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, तो ये एक 0 0, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो इस बॉक्स का एड्रेस क्या होगा 0,0, इस बॉक्स का एड्रेस क्या होगा 1,1, इस बॉक्स का एड्रेस क्या होगा 2,1, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली जब कोई वेरिएबल स्टोर होता है कंप्यूटर में, उनका कुछ एड्रेस होता है, ओके। लेकिन वेरिएबल के केस में क्या होता है कि उनका एड्रेस कॉपी नहीं होता है, सिंपली वो वैल्यू कॉपी हो जाता है नया वेरिएबल में। इसलिए हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो वो इसी में चेंज होता है, जैसे हम लोग ए को 20 करें तो इसी में चेंज हुआ, इसमें चेंज नहीं हुआ, राइट। लेकिन लिस्ट के केस में क्या होता है, जब हम लोग कोई फंक्शन को पास करते हैं तो उसका वैल्यू कॉपी नहीं होता है, उसका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाता है। लेट्स से यहाँ पे इसका नाम है नेम लिस्ट, ओके, नेम लिस्ट, यहाँ पे इसका नाम है वैर लिस्ट, वैर लिस्ट, और यहाँ पे इसका नाम है नेम लिस्ट, ओके। तो इस केस में क्या होता है, इसका एड्रेस कॉपी हो जाता है। लेट्स से ऐसा कुछ है, तो अब क्या होगा, ये एड्रेस अभी लेट्स से ये है नेम लिस्ट का, ओके, नेम लिस्ट का एड्रेस हो गया, नेम लिस्ट में ये एड्रेस आ गया। दिस मीन्स अब ये इसी को पॉइंट करेगा, इस वाले लिस्ट को। लेकिन जो वैर लिस्ट में मैंने पास किया, तो अब मैंने सिर्फ वैल्यू पास नहीं किया, मैंने सिंपली नेम लिस्ट का एड्रेस पास कर दिया, ओके। सो इससे क्या हो गया, अब वैर लिस्ट भी इसी लिस्ट को पॉइंट करेगा क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है, ओके। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा, अब दोनों का एड्रेस सेम है तो दोनों सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इसलिए अगर मैं इस लिस्ट में कुछ भी चेंजेस कर दूँ मैं, तो वो दोनों में चेंज होता है, लाइक नेम लिस्ट में भी चेंज हो जाता है और वैर लिस्ट में भी चेंज होता है, ओके। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। सो दिस इज नोन एज पास्ड बाय रेफरेंस, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो लिस्ट में हम लोग पास्ड बाय रेफरेंस होता है, वैल्यू इज पास्ड बाय रेफरेंस, दैट इज द एड्रेस इज पास्ड। बट अगर हम लोग कोई लेट्स से इंटीजर है या फिर कोई स्ट्रिंग है तो उसमें होता है पास्ड बाय वैल्यू, मतलब सिंपली उसका वैल्यू कॉपी हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, राइट। लेकिन इस केस में पास बाय रेफरेंस होता है, जो कि है जैसे कि यहाँ पे हुआ जिसमें एड्रेस कॉपी हो रहा था सिंपली, ओके। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। सो दिस वाज दिस स्टेटमेंट कि लिस्ट और अदर इम्यूटेबल डाटा टाइप आर पास्ड बाय रेफरेंस। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ओके। सो ये भी एक फंक्शंस का ही छोटा सा पार्ट है, द एनोनिमस फंक्शंस, ओके। इसका कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, बट जस्ट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, ओके। So these functions are not defined using the def keyword, okay। और like अगर तुम्हें like छोटे छोटे functions बनाने, फॉर एग्जाम्पल सिंपली कुछ ऐड करने के लिए या कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए, ओके, तो तुम अगर वो बड़े वाले फंक्शन बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा लाइन्स लेते हैं, राइट। लाइक तुम यहाँ फंक्शन नेम लिखते थे, फिर कोलन देते थे, फिर नेम्स लिखते थे, जो भी तुम्हें करना है वो लिखते थे, फिर रिटर्न करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फॉर दोज यू कैन सिंपली यूज एन एनोनिमस फंक्शन। सो ये बनता कैसे है, लेट्स सी इट। तो तुम जब सिंपल फंक्शन बनाते हो तो तुम पहले डेफ कीवर्ड लिखते हो, फिर फंक्शन नेम लिखते हो, ओके, और फिर तुम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स देते हो, राइट, फिर तुम कोलन देते हो एंड सो ऑन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पहले फंक्शन का नेम दे दो। लेट्स से हमें मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर्स को, विल डू MUL, कुछ भी मैं वेरिएबल कुछ भी फंक्शन नेम दे सकते हो। देन आई विल यूज़ अ लैम्डा कीवर्ड, LAMBDA, ओके। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट कीवर्ड्स आर, राइट। देन वी विल स्पेसिफाई द आर्ग्यूमेंट्स, ओके, जो हम ब्रैकेट्स के अंदर देते थे सिंपल फंक्शंस में, ओके। वी हैव स्पेसिफाइड दैट, अगेन इट कैन बी एनी वेरिएबल, नॉट नेसेसरी दैट जो तुम कॉलिंग के टाइम यूज़ कर रहे हो वही वेरिएबल हो, ओके। फिर क्या करना है हमें, सिंपली जो हमें करना है फंक्शन में, लाइक हमें मल्टीप्लाई करना है, आई विल डू A इंटू B, ओके। इसमें रिटर्न स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, इसका कुछ काम नहीं है। सो हमारा ये फंक्शन बन चुका है, एज सिंपल एज दैट, ओके। ये छोटा सा एक सिंगल लाइन में एक फंक्शन बन गया। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एनोनिमस फंक्शन। लाइक अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है, तुम अगर सिंपल फंक्शन लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारे लाइन लगेंगे, बट ये सिंपल एक सिंगल लाइन में बन गया। अब लेट से तुम्हें यूज़ करना है ये फंक्शन, आई विल डू मल विच इज़ द फंक्शन नेम, आई विल राइट लेट से 3,6। अगर मैं एंटर करूँ मुझे 18 मिल रहा है, राइट।
सो आई समझ आ गया वो कितना ईजी है, राइट। सो अगर मुझे लेट से a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू लेट से 10, और आई नीड टू डू इट, आई विल डू मल इज इक्वल टू a comma b, I've got 20, okay. I can also do c is equal to mul a comma b, अब ये c में स्टोर हो गया, राइट। So let's understand another basic concept, okay. So let's define a function first. I'll name it sum func, okay. So this function will basically calculate the sum of two numbers, okay. So I've given a colon, so since I've given a colon I have to give an indentation, so I'll simply do a plus b, okay. So I've done this, so now I think my function is over now. So now I have to call the function, right. So for that let's make two variables. So I am giving a different name to these variables, right, so that you don't get confused that we have to keep the same name, okay. So let's give it the name 20, and we'll take another variable to which I'll give the value 30, okay. So when I call the function sum func, I'll simply give num1 comma num2, right, and it will give me 50. So since you can see here I have taken two arguments, right. So what if I'll only specify one argument, okay. So now I'll only give num1 and I won't give the second argument. So you can see I'm getting an error because this function asks for two arguments but I'm only giving a single argument, okay. So in this case I'm getting an error. So to avoid that, what you can do is that simply I'll make this function again, control paste. So what you can do, you can specify a default value, okay. So suppose I do b is equal to 0. So this will mean that if no argument is provided for the second value, then by default it will use b as 0, okay. So let's check it now. Suppose I do sum func and I pass num1 comma num2, okay. So you can see I got 50 because num1 was 20 and num2 was 30. So they both were passed and we got the function was executed. I'm sorry, this function was executed and I got 50. But what if I do sum func and I'll only pass num1 this time, I won't pass num2, okay. So I've got 20, right. In this case I was getting an error, okay, but in this case I did not get any error. This is because I only passed num1 which was equal to 20. It went here, num1 was passed to a, but since I did not specify any value for b, so by default b assumed 0, okay. And then I got print a plus b, so b was 0 and a is equal to 20, and as a result I got 20, okay. So I hope this is clear. So this was a very basic thing, right. So now if you see the topic of functions on some other sources, तो तुम्हें ना एक और word दिखेगा methods, okay. So and most of us think that functions and methods are the same thing, okay, but actually में ये दोनों same नहीं होते हैं, इनमें कुछ differences होते हैं, okay. So हम लोग ये differences देखते हैं, okay. So first let us take an example. तो हम लोगों ने अभी तक ये input function यूज़ किया है, right, हम लोगों ने input यूज़ किया है, then हम लोगों ने print function भी यूज़ किया है, correct, right. So अब और हम लोगों ने एक लेंथ फंक्शन भी यूज़ किया है, राइट, जिससे हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकालते थे, राइट. तो अब इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये फंक्शंस हैं, ये इनबिल्ट, ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये इनबिल्ट है, ओके. सो ये इनबिल्ट फंक्शंस कहीं पे लिखे होते हैं. लेट से हमारे पास एक बॉक्स है, ओके, ये बॉक्स है पाइथन का, ओके, जहाँ पे ये सारे फंक्शंस होंगे. So I had told you that functions are already written codes जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो इनपुट का कहीं पे कोड लिखा होगा. तो लेट्स अज्यूम दैट ये एक बॉक्स है पाइथन नेम का जिसे हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, ओके, लाइब्रेरी कहते हैं इसे. तो यहाँ पे लेट्स से ये इनपुट का कोड लिखा होगा, ओके. तो इसमें इनपुट का कुछ कोड होगा, ये बॉक्स है बेसिकली. सिमिलरली प्रिंट का भी कुछ कोड होगा, राइट. नाउ ये लेन भी है. सो नाउ इफ आई टेल यू वन थिंग, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, सो इफ आई डू लेन ऑफ हेलो, ओके, वर्ल्ड, आई विल क्लोज एंड
you can say I'm getting 11, right? But what if I do len of 5? You can say I'm getting an error, right? I've got an error. So that means this len function is only valid for strings, right? So I'm just giving you an example. Like len function is also used for list, tuple, etc. Okay, but as compared to strings and integers, len is valid for strings, but it is not valid for integers, rather numbers, right? We just checked it, not valid for them. It is valid for this. So this means this, but this is also an inbuilt function, right? We use it, right? We have been using it, but there should be some difference between this input, print and len, because the input and print function, they are valid for all. Whether it is an integer, whether it is a string, it is valid for all, right? So like I can't store this len function directly into this box, because then it would have been used by all of them. But since we can't use it for integers, we have, like, Python has to do something to distinguish between this, right? So what Python does is that basically there is another box inside this box, okay, and in the name of this box would be, let's say, string, okay, and this len function would be stored inside this string box, right? So now Python knows that this len box is only, like, this len function was only valid for this string box, and it is not valid for the entire Python, okay? So in this way we can distinguish between them. So now comes the basic difference between functions and methods. So we have been using the term functions for input, print, okay, len. So first of all, whatever we have learned till now, like we were defining a function, they were user defined functions, like we defined the function to calculate the sum of numbers, right? We have been doing this. So also we have dealt with the inbuilt function like input, print, right? We have been dealing with this. Now since you can see this len is stored inside another box, and to be precise, this box is known as a class, okay? So this is the concept of object oriented programming, okay? So since we have not covered this, we have not learned about object oriented programming, so we won't be digging into it. I am simply giving you a very basic example that this box, Python box, stores another box inside it, which is known as a class, okay? So this is a class, and a simple definition of a method is that a function which is stored inside a class, so function which is stored inside a class is called a method, okay? It is called a method. However, a function which is not stored inside any class, like this is a library, I told you this box is known as a library, okay? The overall box of Python, it is known as a library, and this small box, it is known as a class, right? So the functions which are not stored inside any class, they are simply known as functions, okay? So input and print is a function, but this len, it is a method, it is not a function, okay? So like we can say that all methods are functions. However, all functions are not methods, okay? Like functions, like methods are a subpart of functions, okay? So I hope, like, for example, we can say fruit is a general category and apples and mangoes are the different categories inside fruit, right? So similarly, function would be a general category and method is just a subcategory of functions, right? So I hope you're clear with this functions and methods. So this is a very conceptual topic, and I hope you're clear what are functions and what are methods, right?